Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we learn how to write an article review with examples. So, Assalamu alaikum. So, what is an article review? An article review is a common academic assignment where you summarize and assess another person's article. In this type of assignment, you read a specific article, you evaluate it critically, and write your own observation in the review. Okay, so only what you do, only you read that article, critically evaluate it, and then you can write your own observation. For that, the main purpose of writing the article review is to explore the strong and weak points of that article. Then you can highlight the main methodologies, provide a critical evaluations, help clarify the questions, and explain the current state of knowledge. A review of an article should not provide new information. Instead, it explores and evaluates the work done by another writers to help you make up your mind on whether or not this piece is worth reading in its entirety. Now, whenever you are writing a review of an article, इसमें आपने किसी और आर्टिकल को या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन को आप नहीं दे रहे होते। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने जो आर्टिकल पढ़ रही हो, किसी भी ऑथर का आर्टिकल पढ़ रहे हो, उसके तो सबसे पहले आपने उसके मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीक पॉइंट्स क्या हैं वो बताने हैं, उसकी मेन मेथडोलॉजी को हाईलाइट करना है, ठीक है, उसको क्रिटिक करना है, क्रिटिकली इवेलुएट करना है उसकी स्टडी को, राइट, और उसके जो करंट स्टेट ऑफ नॉलेज है उसको एक्सप्लेन करना है कि उसने किस तरीके से उसने प्रेजेंट किया या लिखा। आपने कोई नई इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करनी। How to write an article review. Creating a well-written article review is not easy, but you can do it with some steps to create an informative and engaging work for your audience, and you should follow the below mentioned steps. So first step is preparation. So you have to prepare first of all yourself, your mind, that you are going to write something, okay, and you need to know what type of review is right for your article. This will make it easier for you to read and understand it. So इसके लिए कि सबसे पहले आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग कोई भी एक अच्छा सा टॉपिक सेलेक्ट करना है, ठीक है, उससे ये होगा कि आपका इंटरेस्ट उसके अंदर होगा तो आप उसको बड़े अच्छे से इजी तरीके से आप कर लोगे। Below are some main stages that help you to get started. So read the article, make notes or highlight the main section. सबसे पहले तो आपने उसकी स्किमिंग करनी है। स्किमिंग तो आप सबको पता होगा कि हम एक व्यू में हम देखते हैं कि ओके दिस आर्टिकल इज अबाउट दिस इंफॉर्मेशन और दिस थिंग, ठीक है, आपने उसकी स्किमिंग या स्कैनिंग आप कह सकते हैं, आपने उसको स्कैन कर लिया, फिर आपने उसको सही से पढ़ना है, आर्टिकल को हाईलाइट करने हैं उसके मेन सेक्शंस, then summarize the main idea, arguments, finding and positions, right? Then identify strong claims, जो भी उसके strong claims थे, strong hypothesis थे, ठीक है, वो accept हुए, reject हुए, आपने उनको highlight करना है, identify करना है। Critique the article contributes to the field, फिर उस जिस फील्ड के साथ उसकी क्या न्यू कंट्रीब्यूशन है, आपने उसके ऊपर क्रिटिक करनी है। Examine the title, abstract, introductions, headings, and conclusion. Remember these stages in your mind and start writing your review. Right? ये स्टेजेस आपने सबसे पहले प्रिपरेशन के लिए अपने माइंड में रखनी है कि आपने अपने दिमाग के अंदर एक प्रिपेयर करना है कि यू हैव टू सेलेक्ट वन आर्टिकल, राइट, दैट विल बी फ्रॉम योर ओन इंटरेस्ट, ओके, या आपके अपना प्रोफेशन है उससे एक कोई सिलेक्ट करना है, और कैसे सिलेक्ट करना है, स्कैनिंग करनी है, हाईलाइट करनी है मेन एरियाज को, ठीक है,
क्या उसके स्ट्रॉन्ग क्लेम्स थे उनको हाईलाइट करना है, उसके टाइटल को देखना है, उसके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ोगे, उसकी हेडिंग को देखोगे, उसके कंक्लूजन को देखोगे तो आपको उस आर्टिकल के बारे में आइडिया हो जाएगा कि वो क्या है। देन क्रिएट एन आउटलाइन। ठीक है, अब आपने एक थोड़ा प्रिपरेशन में जो स्टेप्स हमने बताए उससे आपने एक आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। रिव्यू ईच आइटम इन दिस आर्टिकल समरी to determine whether it was accurate and clear. Get back to your notes and preliminary outline to see what you include in your review. Then create an outline and organize all the information you need to add your review. Then आपने एक outline, जब आपने एक article की outline को check किया, उसको review किया और आपने एक अपनी outline बनानी है कि आपने इसके अंदर ये चीज़ें अपने article को review करते हुए ये चीज़ें आपने mention करनी है। ठीक है, जब आप आर्टिकल की हेडिंग्स को देखोगे, एक आउटलाइन को उसकी आउटलाइन को देखोगे, देन आप अपनी आउटलाइन को देखोगे और रिव्यू करोगे कि आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। Then write the title. The title of your review should reflect the main focus. You can either use an interrogative, descriptive, or declarative title to attract reader attentions and make them want more information about what you are writing about. Right? अब सबसे पहले तो आपने टाइटल एक अच्छा सा लिखना है, इंटरोगेटिव हो, डिक्लेरेटिव हो, जो अट्रैक्ट करे रीडर्स को। और वो टाइटल उसका जो टॉपिक है दैट शुड बी रिलेट टू योर रिव्यू आर्टिकल। क्लियर? And then cite the article. Now place the citation in the proper format. Consider the style your professor recommends. This will help you avoid future problems. Like अब citations जितनी article के अंदर है, या article की citations आपने लिखनी है कि ये किस author का है, right? और उसने कहाँ publish किया, कौन से journal में publish किया, तो आप हम लोग जैसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यू शुड फॉलो APA स्टाइल, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो वो जो रेफरेंसेस है का स्टाइल है या साइटेशन का स्टाइल है, आपने उसको फॉलो करना है। And then identify the article. In this step, you should include the identification of the reviewed article. Start by referring to the title, author, and year of publications in the first paragraph. Right? अब जब आप start करोगे तो start में आपने आर्टिकल का बताना है, टॉपिक का बताना है, ऑथर का बताना है, पब्लिकेशन का बताना है, कौन से ईयर में पब्लिश हुई, कौन से जर्नल में हुई, कौन सा वॉल्यूम है, यानी उस आर्टिकल की पूरी डिटेल बतानी है फर्स्ट पैराग्राफ में। देन हमारा 6 स्टेप होगा राइट द कैपिटिवेटिंग इंट्रोडक्शंस। An introductions of an article review should accurately summarize the content. It may also mention key theme, arguments, and authors' claim to identify their position on the subject matter. You must state clearly what thesis was being argued. Sometimes the thesis statement is not clearly stated, so you have to examine it yourself. Like when you are going to write the introduction, okay, तो आपने इंट्रोडक्शंस को जो है डीपली पढ़ के उसको समराइज करना है, एक्यूरेटली समराइज करना है। आपने ये चेक करना है कि उसकी मेन थीम क्या है, कंटेंट क्या है, और जो ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर ही ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं। इंट्रोडक्शन को स्टार्ट ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्क्लोज किया जाता है, वहाँ उसको पहले सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाता है, और जब हम लिख रहे होते हैं इंट्रोडक्शन को और ख़त्म करते हैं तो अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लेके आते हैं या अपने टॉपिक के ऊपर लेके आते हैं। तो आपने उस इंट्रोडक्शन को बड़े अच्छे से समराइज करना है। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि अगर उसने क्लियरली स्टेट किया है अपनी प्रॉब्लम को, नॉलेज को एक्सप्लेन किया है, तो आपने उसको उसी तरीके से समराइज करना है। देन हमारा 7 स्टेप्स है समराइज द आर्टिकल। एन engaging summary of the article discuss its central arguments and includes a list with key findings. अब यहाँ पे जब हम फुल आर्टिकल को समराइज करने जा रहे हैं तो हमने क्या करना है
कि जो उसकी की फाइंडिंग्स हैं। इंट्रोडक्शंस को तो हमने देख लिया, अगर इंट्रोडक्शन के अंदर लिटरेचर है, अगर लिटरेचर उसने अलग से दिया है तो यू हैव टू समराइज द लिटरेचर सेपरेटली। अगर बिकॉज सम रिसर्चर्स क्या करते हैं, लिटरेचर को अलग से मेंशन करते हैं, सम जो है कुछ रिसर्चर्स करते हैं कि इंट्रोडक्शन के अंदर ही लिटरेचर को उन्होंने मेंशन किया होता है। तो ये आपने चेक कर लेना है कि उन्होंने कैसे किया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने उसको समराइज करना है, देन समराइज उसके मेन फाइंडिंग्स को करना है, ठीक है, कि जो उसकी मेन फोकस था, मेन की पॉइंट्स थे, उसको आपने मेन उन फाइंडिंग्स को आपने कंक्लूड करना है। द ऑथर्स कंक्लूजन शुड नॉट बी मिस इन एन any case because it provides an important perspective on what was talked about previously by summarizing all relevant facts together as well. जैसे कि conclusion is very important for your research and for your article writing because जब हमने इतने आर्टिकल जब हम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई हमने इतने महीनों से कोई काम कर रहे हैं तो कंक्लूड क्या किया हमने, उसका रिजल्ट्स क्या निकला और कंक्लूड क्या किया। तो सेम वे में कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्टिकल रिव्यू एज वेल। जो उसने कंक्लूजन लिखा है, you have to write that conclusion as well, but summarize that conclusion. Okay, so write your critique at the end, then you write your own critique. The article contributions and importance to the field should be discussed in the article. You can support your critique with facts, evidence or other perspective. अब यहाँ पे critique आपने कैसे लिखनी है। अब आपने ये नहीं कह देना कि हाँ भाई this article is very good, I like this article. No, this is very wrong. Write your critique as a researcher. राइट, तो रिसर्चर कैसे लिखते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं विद अदर एविडेंस से कि ओके, जैसे अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे थे कि उसने डिस्कशन में बताया कि ओके अपने रिजल्ट्स को कैसे दूसरों के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करके, तो आपने उनके फैक्ट्स को, उस आर्टिकल के फैक्ट्स को कंपेयर करना है एविडेंस के साथ, ठीक है। आपने उसको सपोर्ट कर रहे हो या सपोर्ट नहीं कर रहे हो, विद एविडेंस आपने क्रिटिक लिखनी है। इट वुड बी ग्रेट to share your opinion on what is working well and where works need improvement. फिर on that basis, right, on the basis of evidence, कि अब आप बता सकते हो ओके कि उसकी अगर आप रिसर्चर जो आर्टिकल पढ़ा तो आपने कहा कि मे बी मेथडोलॉजी सही नहीं थी, उसको मेथडोलॉजी में चेंज लाके अगर उसके हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहे हैं तो एक्सेप्ट हो सकते थे, या पॉपुलेशन को चेंज कर सकता था, मेथडोलॉजी को, क्वेश्चनेयर को, किसी भी चीज को चेंज कर सकता था, इम्प्रूव कर सकता था। तो वो ये चीजें आपने अपनी क्रिटिक के अंदर बतानी है, ठीक है। तो अपनी क्रिटिक उस पूरे आर्टिकल को पढ़ के तो आपने अपनी क्रिटिक बता रहे होते हो कि भाई ये आर्टिकल को वो इस तरीके से और इम्प्रूव कर सकता था, क्वेश्चनर को चेंज कर सकता था, इवन स्टैटिस्टिकल टेक्निक कोई अच्छी सी लगा सकता था, कोई दूसरी लगा सकता था जिससे रिजल्ट बेहतर आते, या जो उसने लगाई है वो जो उसका हाइपोथेसिस है उसके साथ सूट नहीं कर रहे थे, तो उसको अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू के दूसरी स्टैटिस्टिकल टेक्निक होनी चाहिए थी, राइट। देन नंबर 9 इज कंक्लूड द आर्टिकल रिव्यू. In the concluding section, summarize the main points and your opinion about the topic. Do not add irrelevant and new information that confuse the reader. ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन में जब हम क्रिटिक कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसको हम कंक्लूड कर रहे हैं और कोई नई चीज़, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी, राइट। प्रूफ रीड, अब ये लास्ट स्टेप है कि आपने एक अगर आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है तो उसको अगेन रीड करो, प्रूफ रीडिंग करो अगेन एंड अगेन, ताकि जो आपके एरर हैं वो कोई एरर ना आए, ठीक है। वो एरर फ्री होना चाहिए बिफोर यू आर गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट टू द प्रोफेसर और योर टीचर, राइट। तो इसको री रीडिंग ज़रूर किया करो, क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बस कहते हैं कि ओके हमने पढ़ लिया और ख़त्म, उसको दोबारा से री रीडिंग ही नहीं करते। तो आपने अगेन एंड अगेन रीडिंग करोगे तो आपको समझ आएगा कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक की है। ओके, अच्छा ये तो सारी बात हो गई थी कि हमने एक आर्टिकल रिव्यू को करना कैसे है, ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू करना है, वो तो हमने ये सारी बात की। अब आर्टिकल रिव्यू का फॉर्मेट क्या हो सकता है, लिखने का फॉर्मेट, ठीक है, जैसे कि हम आर्टिकल राइटिंग के फॉर्मेट होते हैं, रिसर्च पेपर के फॉर्मेट होते हैं, तो सेम वे में आर्टिकल रिव्यू का फॉर्मेट क्या हो सकता है। सो टू क्रिएट अ वेल रिटन रिव्यू
and get an A plus from your teacher, you must follow the proper format recommended by the professor. Citation styles can vary depending on the instructor requirements. Make sure your citation are formatted correctly to avoid any plagiarism. So हम लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ज़्यादा प्रोफेसर कौन से फॉर्मेट को प्रेफर कर रहे होते हैं, एपीए को। जो मैंने आपको पहले बताया कि एपीए के फॉर्मेट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि आप अपने आर्टिकल्स को अपनी असाइनमेंट को इस फॉर्मेट में लेके आओ। अभी से आप लोग काम करोगे, इवन आप अपनी असाइनमेंट्स को भी एपीए फॉर्मेट में लेके आओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आप अपना थीसिस करोगे तो वो उस फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। और फिर जैसे कि प्लेजरिज्म चेक होता है तो प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए, यानी ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ताकि कोई बाद में मिस्टेक ना हो और फिर आपके मार्क्स भी अच्छे हैं। अच्छा, टिप क्या है कि एक अच्छा आर्टिकल रिव्यू कैसे आप लिख सकते हो। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिमेंबर व्हेन राइटिंग एन आर्टिकल रिव्यू इज कीपिंग इट इंटरेस्टिंग फॉर बोथ रीडर्स एंड ऑथर्स। हियर आर सम टिप्स फॉर फ्रॉम आवर टीम वन on how you can best to approach this. First, give insight or observations about the article कि आपने इस आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है अबाउट दिस आर्टिकल, ठीक है, आपकी अपनी थिंकिंग क्या है आपने वो बतानी है। राइट रेलेवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आप उसमें बता रहे हो दैट शुड बी रेलेवेंट, राइट। द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन शुड बी अटेंशन ग्रैबिंग, ठीक है। हमेशा जो सेंटेंस आप ओपनिंग सेंटेंस यूज करो कि वो इतना अट्रैक्टिव हो कि वो अटेंशन कैच करे। कवर ऑल द की पॉइंट्स इन योर रिव्यू, जो मेन की पॉइंट्स हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। नो दैट रिव्यू कैन बी ईदर अ लिटरेचर रिव्यू और अ क्रिटिकल रिव्यू, ठीक है। जैसे लिटरेचर रिव्यू भी हम कर रहे होते हैं या क्रिटिकल रिव्यू या आर्टिकल रिव्यू कर रहे होते हैं, वो सेम होते हैं। हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, थोड़ा अपना इंटरेस्ट, मोटिवेशन और हार्ड वर्क की ज़रूरत है, तो हम एक अच्छा आर्टिकल रिव्यू कर सकते हैं। कीप द मेन पॉइंट्स ऑफ द आर्टिकल इन योर माइंड, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि एक हमने आउटलाइन बना लेनी है, तो वो आउटलाइन आपके माइंड में होनी चाहिए और उसी आउटलाइन को आपने समराइज करके मेंशन कर देना है। कीप द लेंथ ऑफ द आर्टिकल रिव्यू इन द माइंड, एग्जाम्पल सिस्टमैटिक रिव्यू आर शॉर्टर इन लेंथ, ठीक है। और आपने एक लेंथ भी दिमाग के अंदर रखनी है कि मैंने इतना लिखना है, इतने वर्ड्स का लिखना है, इतने पेजेस का लिखना है। टू राइट अ ग्रेट रिव्यू you need to make a proper plan and start writing it, right? Pick the article from a legal source and evaluate the information for further limitations before writing your opinion about the chosen topic. I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।